Good morning, students. Today we are going to discuss the joint cumulative distribution function and joint probability density function. So till now we have focused our attention on situation involving one random variable. However, many a times the situation arises in which to perform a particular experiment, more than one random variable is required. In such type of scenario, we are taking under consideration two random variable or more than two random variable. So now we consider the situation involving two random variables x and y, and let us extend the concept which we have developed for a single random variable for both of these random variables. So in front of you, there is a definition of joint CDF, joint cumulative distribution function. So the joint CDF represented as capital F in subscript capital X capital Y in bracket x comma y of two random variable capital X and capital Y is defined as the probability that random variable capital X is less than or equal to a specified value x small x, and that the random variable capital Y is less than or equal to a specified value small y. So mathematically that statement can be written as the joint CDF is equal to probability that capital X is less than equal to small x, and probability that capital Y is less than equal to small y. So it representing the joint cumulative distribution function of a two random variable. For a single random variable, suppose that we want to calculate the CDF of a single random variable capital X. So in that case, the CDF of X is equal to probability that capital X is less than equal to small x, where small x is the values of that random variable. Similarly, if we want to extend that concept for two or more than two, that is n number of random variables. So for two random variables, the statement in front of you, the joint CDF will be the probability that x capital X is less than equal to small x and capital Y is less than equal to small y, and so on. Now the properties of joint CDF. The first property is the joint CDF is a non-negative function. जो मैं पहले से पता है, ज्वाइंट CDF की बात करें, PDF की बात करें, सारी के सारे probabilities and probabilities always are non-negative values, कभी negative नहीं हो सकती. So the property first is the true one is the joint CDF is a non-negative function. Second property, the joint CDF is a monotone non-decreasing function of x and y. इसका मतलब क्या हुआ, अभी जब हम सिंगल CDF की बात करते थे, सिंगल CDF क्या रिप्रेजेंट करता था. सपोज करिए हम सिंगल CDF बात कर रहे हैं 3 पे कैलकुलेट करने के लिए, 3 और लेस देन 3, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी और 3 की प्रोबेबिलिटी को निकाल के उनका एडिशन करने वाले हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरी टाइम वी आर गोइंग टू इंक्रीज, हम इंक्रीज कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कंटिन्यूस इंक्रीमेंट है. तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है आपका, इट इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इट कैन बी स्टेटेड एज मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम. सो यहीं पे प्रॉपर्टी 2 भी है, जैसा हम सिंगल CDF के लिए प्रॉपर्टी, वही आपकी ज्वाइंट CDF के लिए भी होगी. So the joint CDF is a monotone, a non-decreasing function of x and y. Property number 3, the joint CDF is always a continuous everywhere in x and y plane. जैसे आपका CDF है, वो हम किसी एक ही लाइन में बात करते थे, आइदर x एक्सिस आइदर y एक्सिस. यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, इसलिए दोनों मिलकर एक प्लेन बनाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, द ज्वाइंट CDF इज always continuous everywhere in x and y when it is a monotonically increasing function. Clear? These are the three different property of joint CDF. आगे चलते हैं. तो जैसे आपका joint CDF होता है, similarly आपका क्या होता है, joint PDF भी होता है. So similar to joint CDF, we can extend the concept of PDF of two or more random variable. The joint PDF is defined for two or more continuous random variable which may or may not be statistically independent. Clear? नहीं clear है? So the statement will be the joint PDF of any two random variable, let us suppose x and y, may be defined as the partial derivative of the joint CDF. Partial derivative of the joint commutative distribution function with respect to dummy variable x and y. So for to calculate the PDF of a single CDF, to calculate the PDF of a single random variable, we are going to differentiate the CDF of that random variable. Similarly, if we want to calculate the joint PDF of two random variable x and y, we have to perform the partial differentiation of the joint CDF with respect to x with respect to y. That is the statement is the joint PDF of x and y may be defined as the partial derivative of the joint CDF with respect to dummy variable x and y. Mathematically, it can be written as the joint PDF. Joint PDF is represented as small f
subscript capital X capital Y bracket में x comma small y is equal to del square joint CDF upon del x del y, in differentiation of partial differentiation of joint CDF with respect to x and y. Now move towards the properties of the PDF. तो ध्यान रखिएगा जो सिंगल की बात हो रही है वही डबल में भी होगी, बहुत हल्का फुल्का चेंज होने वाला। जो सिंगल पीडीएफ और सीडीएफ की प्रॉपर्टीज है वही आपके ज्वाइंट पीडीएफ और सीडीएफ की प्रॉपर्टी होगी, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ। देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, द ज्वाइंट पीडीएफ इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था, चाहे पीडीएफ की बात करें सीडीएफ की बात करें, ज्वाइंट पीडीएफ ज्वाइंट सीडीएफ सारी सारी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ज्वाइंट पीडीएफ इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। सेकंड वन, द टोटल वॉल्यूम अंडर द सरफेस ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू यूनिटी। जब तक हम सिंगल पीडीएफ की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते थे, टोटल एरिया अंडर द सिंगल पीडीएफ कर्व इज इक्वल टू यूनिटी। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल है, तो दो रैंडम वेरिएबल दो प्लेन होंगे, दो प्लेन होंगे, तो जब उनमें हाइट इंक्लूड होगी तो वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। एक्स और वाई उसकी लेंथ और विड्थ हो गई, एच उसकी हाइट हो गई, तो टोटल वॉल्यूम होगा वहां पर। क्या करें, द टोटल वॉल्यूम अंडर द सरफेस ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू यूनिटी, while in case of a single PDF the total area under the PDF curve is equal to unity. Here the statement will be the total volume under the surface of a joint PDF is equal to unity. देखिए हल्का सा चेंज है दोनों चीजें, बाकी दोनों चीजें सेम ही है। So mathematically it can be written as a double integration from minus infinite to plus infinite joint PDF dx dy is equal to 1. So statement इन्होंने यहाँ पे complete भी किया है, because joint PDF is a two-dimensional function. It represents a surface in xy plane. Hence its integration is called as a volume under the surface. Property number 3 पे चलते हैं। The joint PDF is continuous everywhere. Joint PDF किसका derivative है CDF, CDF is continuous everywhere. Joint PDF is also continuous everywhere. Now we are going to find property number 4. Property number 4 क्या था, आपको ध्यान दीजिए, जब हम PDF की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे property number 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, property number 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि अगर कोई random variable किसी दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा, find the probability that capital X lie between x1 and x2. In that case the probability will be integration from x1 to x2 pdf dx. यहाँ पे भी वही चीज है, तो यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है, इन्होंने कहा the relationship between the joint pdf and probability. The relation between the probability and pdf over a certain interval is expressed as for a single pdf. मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, the probability that x lie between x and x2 can be represented as integration from x1 x2 fx dx. Similarly, the above relation may be extended for two random variable or more than two random variable. For two random variable, the expression can be written as the random variable capital X is lie between x1 and x2. The random variable capital Y is lie between y1 and y2. So the double integration from y1 to y2 and x1 and x2 of joint PDF dx dy. This is to represent the probability that your random variable capital X lie between x1 and x2. The random variable capital Y is lie between y1 and y2. Now, if two random variable x and y are statistically independent to each other, if two random variable x and y are statistically independent to each other, then joint PDF of these two random variables become a product of their separate PDF. If two events x and y are independent to each other, in that case the joint PDF will become the multiplication of their individual PDF. जैसे कि probability में होता है, अगर आपके पास दो इवेंट है, इवेंट A और इवेंट B, अगर दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो probability A into B is equal to probability of A into probability of B. ये हमारा डिस्क्रीट में होता है। सिमिलरली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को रिप्लेस कर दिए पीडीएफ से, तो द जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल पीडीएफ. सो द स्टेटमेंट इज joint PDF is equal to PDF of x into PDF of y. So put the value that in the given equation and we will get both of the integration individual and individual component will integrate. That is, the PDF of y will integrate from y1 to y2, PDF of x will integrate from x1 to x2, and the multiplication of these two will provide you the probability that capital X is lie between x1 and x2, capital Y is lie between y1 and y2. These are the properties of the joint PDF and the joint serial. पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट कि किस तरीके के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। अभी तक मेरा मेन हम लोग का मेन कांसेप्ट सीडीएफ और पीडीएफ ही था। हमने क्या किया, केवल जो मेन कांसेप्ट सीडीएफ और पीडीएफ था उसको हमने एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल के लिए ऑब्जर्व किया कि क्या फर्क पड़ जा रहा था, तो बहुत माइनर चेंजेस के साथ हमने उसके इफेक्ट को देखे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है joint PDF of two random variable x and y is given as, this is the joint PDF value, e raised to the power minus x plus y for x is greater than 0, y greater than 0, otherwise. Determine the following. First, probability that capital X is less than 1. Second, probability that capital X is greater than y.
थर्ड प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस वाई इज लेस देन 1। तो ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, तीनों चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना होगा हमें। तो पहली चीज क्या है, हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है जिनके हमारे पास ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, दो अगर रैंडम वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी ज्वाइंट पीडीएफ दोनों के इंडिविजुअल पीडीएफ के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होती है। चीज तो हमने अभी ऊपर देखी थी। जैसा प्रोबेबिलिटी के साथ होता है वैसे पीडीएफ के साथ भी होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइंट पीडीएफ जो है x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 के लिए दिया है e की पावर माइनस ब्रैकेट में x प्लस y। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस y। e की पावर माइनस x रिप्रेजेंट करेगा पीडीएफ ऑफ x, e की पावर माइनस y रिप्रेजेंट करेगा पीडीएफ ऑफ y। इसका मतलब ज्वाइंट पीडीएफ इज रिप्रेजेंटेड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल पीडीएफ ऑफ x एंड y, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ ऑफ x एंड y। So the joint PDF can be the will be the e की power minus x into e raised to the power minus y. It means both the random variable are independent to each other. Why? Because their joint PDF can be represented as the multiplication of their individual PDF. चलिए आगे चलते हैं। तो determine the first, that is probability that x is less than y। पहली चीज में कैलकुलेट करनी है, चलते हैं। The solution is given that the joint PDF is e raised to the power minus x plus y, so it can be written as e की power minus x into e raised to the power minus y, so it is equal to PDF of x is equal to e raised to the power minus x, PDF of y is equal to e. So x and y are independent random variable, and both of the PDF of these two random variable can be written in front of you. PDF of x is equal to e raised to the power minus x for x is greater than 0, and PDF of y is equal to e raised to the power minus y for y is greater than 0. First question is find the probability that x is less than 1. तो x is less than 1, फंक्शन कहां से कहां तक लाई कर रहा है आपका? ट्रूली बताइए, फंक्शन कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 0 से बियॉन्ड, 0 टू इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है। मुझसे क्या पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 से पीछे तो कुछ भी नहीं है, 0 के पीछे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो द above स्टेटमेंट दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल x इज लेस देन 1 कैन बी रिटन एज, कैन बी स्टेटेड एज प्रोबेबिलिटी x is greater than 0 less than 1. So for that we can use the property number 4 of the PDF. Property number 4, it will become integration of e raised to the power minus x dx 0 to 1. Solve that value, you will get 1 minus 1 by e. It is the value for the probability of that x is less than 1. Second, find the probability that x is greater than y. Now try to understand, x is greater than y can be written as, try to understand, suppose that your limit of y, or you can say x is greater than y. So in that case, your range of y is always less than x. क्लियर नहीं क्लियर है? सपोज करिए आपकी जो x है वो वेरी कर रही है 0 टू इनफाइनाइट। सपोज करिए आपका जो रैंडम वेरिएबल है, मैंने ऊपर बताया था आपका रैंडम वेरिएबल 0 से ग्रेटर के लिए लाई कर रहा है। सपोज करते हैं x जो है वो वेरी कर रहा है 0 टू इनफाइनाइट, तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा होगा आप बताइए? कंडीशन है y इज लेस देन x, y की जो रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? x तक जाएगी। x से ज्यादा तो हो नहीं सकता। यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज ग्रेटर देन रैंडम वेरिएबल कैपिटल Y। Suppose that the range of random variable capital X is 0 to infinite. Here, second, what will be the range of Y? Y will be from 0 to X. So the equation, the question written in statement second, that probability that X is greater than Y can be written as probability that capital X lie between 0 to infinite, comma capital Y lie between 0 to x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे ज्वाइंट पीडीएफ की। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डबल इंटीग्रेशन होगा, पहले x की रेंज रखेंगे 0 टू इनफाइनाइट, y की रेंज क्या होगी 0 टू x। हमारे पास ज्वाइंट पीडीएफ दिया, ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx एंड dy। तो हमने उस इक्वेशन को यहाँ पे रखा, पहले हमने dy के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, dy सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसको हमने dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, सॉल्व करने के बाद लिमिट की वैल्यू पुट की और हमें आंसर मिल गया 1/2। क्लियर है? थर्ड पूछा गया हमसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस y इज लेस देन 1, यानी एडिशन ऑफ बोथ द रैंडम वेरिएबल इज लेस देन 1। क्लियर है? चलिए हम इसमें से कोई एक वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं। अगर x आपका वेरी कर रहा है 0 टू 1, अगर x वेरी कर रहा है 0 टू 1, तो y कहां से कहां तक वेरी करेगा? y वेरी करेगा 0 टू 1 माइनस x। इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, मैं अगेन यूनिट प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी आपकी?
आपका पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल किस से किस लिमिट के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा रैंडम वेरिएबल किस से किस लिमिट के बीच में लाई कर रहा है। हम दोनों के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं और ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देते हैं उस लिमिट के साथ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x प्लस वाई इज लेस देन 1। तो हमने सपोज कर लिया कि x वेरी कर रहा है आपको 0 to 1, इनफिनिट जा ही नहीं सकता कि कंडीशन ही है लेस देन 1 की। तो 0 to 1 लाई कर रहा है, तो y कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 to 1 माइनस x के लिए। तो वही दोनों लिमिट में मिल गई, ज्वाइंट पीडीएफ में पता था, इंटीग्रेट कर दीजिए पहले y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, पुट दैट वैल्यू, सॉल्व इट, your final answer will be 1 minus 2 by। तो हमें आंसर तीनों के मिल गए। जो हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 1 निकाल लिया हमने, सेकंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन y उसको भी निकाल लिया, 1 by 2 आ रहा था, थर्ड दैट प्रोबेबिलिटी x plus y is less than 1, 1 minus 2 by। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यूनिट प्रॉपर्टी 4 का यूज हुआ, तीनों के तीनों सॉल्व करने में हमने यूनिट नंबर 4 का यूज किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ टू रैंडम वेरिएबल x and y is given as fxy x comma y is equal to c 2x plus y for 0 to x is lie between from 0 to 2, y is lie between 0 to 3 and 0 otherwise, यानी 0 से 2 के लिए और y 0 to 3 के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है ज्वाइंट पीडीएफ पर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंसी, c की वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। हम किस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को यूज करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, द वॉल्यूम अंडर द प्लेन xy प्लेन इन अ ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू यूनिटी। हम उसी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यूज कर लिया double integration from minus infinite to plus infinite of a joint PDF dx dy is equal to 1. Volume under the xy plane of the joint PDF is equal to 1. Property number second. Put that value here. F की range क्या थी, 0 to 2. Y की range क्या थी, 0 to 3. Put the value of joint PDF c 2x plus y dx dy is equal to 1. Solve that integration and finally you will get your answer. C is equal to 1 by 21. तो यहाँ पे कोई कठिन चीज नहीं, बहुत आसान चीज है। अब इन क्वेश्चंस को देखेंगे, कोई बड़ी चीजें नहीं है। जब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लिमिट पुट करके, लिमिट आप डिसाइड कर रहे हैं या क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्जिनल डेंसिटीज। देखते हैं मार्जिनल डेंसिटीज क्या है। अभी तक हमने जो बात की डेंसिटी की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की बात की, तो हमने वहां पर देखा आपका सिंगल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था, वहां हमने देखा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था। अब बात आ रही मार्जिनल डेंसिटी फंक्शंस की। तो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शंस क्या है, सपोज करिए आपको ज्वाइंट पीडीएफ की नॉलेज है, सिंगल पीडीएफ की नहीं है, आपको ज्वाइंट पीडीएफ की नॉलेज है, और कोई आपसे कह रहा है कि सर विद द हेल्प ऑफ दिस ज्वाइंट पीडीएफ आप सिंगल पीडीएफ की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई का ज्वाइंट पीडीएफ हमें पता है, कोई हमसे पूछे कि फाइंड आउट द पीडीएफ वैल्यू ऑफ ओनली एक्स एंड द पीडीएफ वैल्यू ऑफ ओनली वाई। तो जो हमें पीडीएफ ऑफ ओनली एक्स और पीडीएफ ओनली वाई जो मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल डेंसिटीज कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। when we are dealing with two random variables x and y, the individual probability densities can be obtained from their joint pdf, then these individual densities are called as marginal densities or marginal probability density functions। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सो फॉर अ सिंगल रैंडम वेरिएबल, अगर हमारे पास एक सिंगल रैंडम वेरिएबल है, तो सीडीएफ क्या डिफाइन होता था, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिफाइन होते थे। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड माइनस इनफाइनाइट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ विद फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू एक्स। हमें पता है पहले से फॉर्मूला पता है, अगर हमें सीडीएफ निकालना है तो पीडीएफ को माइनस इनफाइनाइट एक्स के लिए इंटीग्रेट करते थे। क्लियर है। इफ वी फाइंड CDF of a random variable x, then the value of y does not matter। मतलब अगर हम केवल x की बात कर रहे हैं, अगर हमें केवल x के CDF निकालनी है, तो एक तो हम सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, उसके बाद जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं, y है, z है, कोई भी है, हमें उसकी रेंज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा फोकस ज्वाइंट पे नहीं है, हमारा सिंगल पे फोकस है। तो अगर हम केवल x की बात कर रहे हैं और x का CDF निकालना है, तो x का PDF लीजिए, उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, you will get your CDF। यहीं पे स्टेटमेंट लिखा है कि if we were trying to find the CDF of a random variable capital X, then the value of y doesn't matter। Therefore, the above equation or the above statement can be written as, so the probability, the CDF of x can be written as the probability that x is less than x, or it can be written as probability that capital X is less than x, or y ranges from minus infinite to plus infinite। देखिए मेरी बात समझिएगा, बहुत सीधी सी बात है। हम करने क्या जा रहे हैं, हमारे पास ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, with the help of that joint pdf we are going to calculate the pdf of a single random variable, जिसको हम marginal probability density function कहने वाले हैं। उसी को ऑब्टेन करने के लिए, उसी एक्सप्रेशन को अचीव करने के लिए यहाँ पर हम स्टेप चल रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि सर ज्वाइंट सीडीएफ का इक्वेशन हमें पहले से पता है, ज्वाइंट पीडीएफ निकालिए, इंटीग्रेट करिए, ज्वाइंट सीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बात ये आती है कि सर जब हम ज्वाइंट सीडीएफ निकालते हैं,
तो केवल एक्स, सॉरी, जब हम सिंगल सीडीएफ निकालते हैं, पीडीएफ निकालते हैं, तो हमारा केवल एक्स से मतलब है, वाई से हमारा कोई मतलब नहीं, दूसरे रैंडम वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो जब हम सिंगल सीडीएफ निकालते हैं किसी रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन स्मॉल एक्स। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स इज लेस देन स्मॉल एक्स, कॉमा y रेंजेस फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। समझिए ना, y से तो हमारा कुछ लेना ही देना नहीं है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक y को वेरी करने दीजिए, मुझे y से मतलब ही नहीं है ना, y कहां से कहां तक जा रहा है, मुझे किससे मतलब है, मुझे x से मतलब है। x की रेंज क्या थी, मुझे x के लिए सीडीएफ कैलकुलेट करना था, x के लिए पीडीएफ कैलकुलेट करना था। x की सीडीएफ की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। अगर उसके बगल में लिखा हुआ है कि y वेरी कर रहा है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, z वेरी कर रहा है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, कोई भी वेरिएबल रैंडम वेरिएबल वेरी कर रहा है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो उसके लिए हमारा कोई फर्क मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम उस जो एक्सप्रेशन सेकंड प्रोबेबिलिटी आपका लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू एक्स, द जॉइंट पीडीएफ dx dy. So with the help of this equation, we are going to calculate the single PDF of the given expression. Clear है? आगे चलते हैं अभी। So for a given statement, it can be written as the integration from minus infinite to plus infinite, y के लिए, x के लिए minus infinite to x, joint PDF dx dy. For a single random variable, PDF is obtained by differentiating the CDF. CDF को हम डिफरेंशिएट करेंगे, PDF मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम सिंगल CDF को, जो आपका सिंगल CDF ये था, दिस योर सिंगल CDF, इसको हमने किस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने सिंगल CDF को इस तरीके से लिखा। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 किसकी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यूज करेंगे ज्वाइंट पीडीएफ की। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ, the probability that capital X is less than small x and the probability that capital Y ranges from minus infinity can be written as this one, that is the double integration minus infinite to plus infinite minus infinite to x joint pdf dx dy। तो अगर हमें सिंगल के लिए पीडीएफ कैलकुलेट करना है तो हम सीडीएफ को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अभी हमने सीडीएफ की वैल्यू क्या ऑब्टेन की है, ये ऑब्टेन की है, तो इसकी वैल्यू उठा के अब हम पुट करने जा रहे हैं पीडीएफ कैलकुलेट करने के लिए। सो पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन इन हियर, पुट करिए इस वैल्यू को और डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको सिंगल पीडीएफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंगल पीडीएफ क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट joint PDF with respect integration of joint PDF from minus infinite to plus infinite with respect to dy. This is called the marginal density। तो ये फॉर्मूला निकल के आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास joint PDF गिवन है और x का आपको PDF कैलकुलेट करना है, सिंगल रैंडम वेरिएबल x का PDF कैलकुलेट करना है, तो ज्वाइंट पीडीएफ को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर आपको y का पीडीएफ कैलकुलेट करना है तो ज्वाइंट पीडीएफ को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। ये जो दोनों वैल्यूज मिलती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मार्जिनल डेंसिटीज और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर x का निकालना है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और अगर y का निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और वो क्यों अपोजिट की वैल्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, मैंने ऊपर डेरिवेशन में आपको दिखा दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें समझ में आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं, दो रैंडम वेरिएबल में एक रैंडम वेरिएबल की अगर होने की प्रोबेबिलिटी अगर दूसरे के बारे में पता है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे। ऐसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, एक के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नोन है, दूसरे का अननोन है, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देख लेते हैं, द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन दैट कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। मैंने आपको बता दिया, दो रैंडम वेरिएबल हैं x और y, दोनों के पीडीएफ में हमें x का पता है, y का नहीं पता, y का पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पीडीएफ ऑफ y, that is called the conditional PDF of y. It can be written as
PDF of y, that is small f सबस्क्रिप्ट में कैपिटल Y ब्रैकेट y by x, ऐसे ही तो लिखते हैं कंडीशनल को, इज इक्वल टू ज्वाइंट PDF डिवाइडेड बाय द PDF ऑफ x. PDF ऑफ x मुझे नोन है, मुझे पहले से पता है, y का नहीं पता, मुझसे y का पूछा जा रहा है. फॉर्मूला क्या होगा, जो y की वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल PDF कहेंगे. सो कंडीशनल PDF ऑफ y इज इक्वल टू द ज्वाइंट PDF डिवाइडेड बाय द PDF ऑफ x. ऐसे ही तो होता है. अगर हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है x और y, अगर दोनों रैंडम वेरिएबल में किसी एक की वैल्यू पूछी जा रही है तो हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट x by y इज इक्वल टू ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x into y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y. वही सेम है, वहां पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. So the conditional PDF of y can be given as the joint PDF divided by PDF of x. Similarly, opposite sense में, similarly the conditional PDF of x can be given as the joint PDF divided by PDF of y. Vice versa, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो एक पता है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो नहीं पता है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर है? तो वेयर the value written in the denominator is called the marginal density of the random variable. अगर x के रिस्पेक्ट में तो this will represent the marginal density of random variable x, और अगर y के रिस्पेक्ट में it is called the marginal density of random variable. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे थे बिल्कुल उससे मैच करते चलिए, सारी चीजें आसान है. प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे रिप्लेस किया गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे वहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती थी वैसे यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. क्लियर है? आगे चलते हैं. प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है, द कंडीशनल पीडीएफ इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, दोनों वैल्यू हमेशा आपकी नॉन नेगेटिव होगी. सेकंड प्रॉपर्टी, द एरिया अंडर द कंडीशनल पीडीएफ इज इक्वल टू यूनिटी. अब चूंकि कंडीशनल पीडीएफ की बात करें, यानी एक पीडीएफ की बात हो रही, दो की तो बात हो नहीं रही है. अगर एक पीडीएफ की बात हो रही है तो आपको पता है सिंगल पीडीएफ का कर्व यूनिटी होता है फॉर अ गिवन टाइम ऑफ इंटरवल. यहाँ पे भी क्या होगा, आपका कंडीशनल पीडीएफ एक्स का हो चाहे कंडीशनल पीडीएफ वाई का हो, उनका टोटल एरिया क्या होने वाला है, 1 होने वाला है. आगे चलते हैं. If two random variable x and y are statistically